حدیث نمبر 99 ہے. حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 5 چیزیں ہیں جو شخص ایمان کے ساتھ انہیں بجا لایا جنت میں داخل ہو جائے گا. پہلی چیز ہے جس نے 5 نمازوں ان کے وضو، رکوع اور سجدوں اور ان کے اوقات کی حفاظت کی. 5 نمازیں ہیں اور 5 نمازوں میں کیا ہے؟ وضو ہے، رکوع ہے، سجدے ہیں اور اوقات وقت پر انہیں ادا کیا، ان کی حفاظت کی. دوسرا کام کیا ہے؟ رمضان کے روزے رکھے. تیسرا کام کیا ہے؟ راستے کی استطاعت کی صورت میں بیت اللہ کا حج کیا. چوتھا کام کیا ہے؟ خوش دلی سے زکوٰۃ ادا کی. اور 5واں کام کیا ہے؟ اور امانت کو ادا کیا. عرض کیا گیا یا رسول اللہ امانت ادا کرنے سے کیا مراد؟ فرمایا غسل جنابت کرنا، کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے سوا ابن آدم کے پاس دین کی اور کسی چیز کو بطور امانت نہیں رکھا. طبرانی نے اسے جید اسناد کے ساتھ روایت کیا ہے. پہلی چیز جس کی طرف توجہ کرنے کی ضرورت ہے وہ جنت ہے، کیونکہ جنت کی خوشخبری ہے. جنت کیا ہے؟ ایک چھپا ہوا مقام ہے. آنکھیں جسے دیکھ نہیں سکتی، کان جس کے بارے میں سن نہیں سکتے، عقل و فہم سے جس کا ادراک نہیں کر سکتے. جنت جو انسان کی شدید خواہشات میں سے ہے، جو ہمارا سب سے پہلا گھر تھا، جس میں آدم علیہ السلام اور سیدہ حوا کو بسایا گیا. جنت کی زندگی کیسی ہے؟ اس زندگی میں کسی کو فنا کا دھڑکا نہیں ہے. جب کوئی جنت میں جائے گا نا، جانے سے پہلے ایک منادی ندا دے گا، اب تم سدا صحت مند رہو گے، کبھی بیماری نہیں آئے گی. اب سدا خوش رہو گے، کبھی غم نہیں آئے گا. سدا جوان رہو گے، کبھی بڑھاپا نہیں آئے گا. غم ہی ختم ہو گیا. یعنی جنت ایسا مقام ہے جہاں غم کا کوئی دخل نہیں ہے. آپ دیکھیں زندگی میں بہت سارے غم ہیں، لیکن موت کا غم، موت کا دھڑکا تو ہر ایک کو لگا رہتا ہے. کیا پتا کب کس کی زندگی کا پتا کٹ جائے، کوئی نہیں جانتا. کوئی جوان ہے، بچہ ہے یا بوڑھا ہے. موت کے دھڑکے میں جینے والے انسان کی خواہش کو تو دیکھو. اسی جھانسے میں آ کر تو کل خطا کر بیٹھا تھا، کیونکہ ہمیشہ کی زندگی تو انسان کی خواہشات میں سے ہے. کون ہے جو آپ میں سے جس کا جی چاہتا ہو کہ میں مر جاؤں؟ ایک عقل مند انسان، ایک ایسا انسان جو صاحب شعور ہے، موت اسے پریشان کرتی ہے. موت کا تصور اسے اچھا نہیں لگتا، اگرچہ موت کے تصور کے ساتھ بہت سی خوبصورتیاں بھی وابستہ ہیں. انسان فنا نہیں ہونا چاہتا. انسان فانی ہے، اس کا وجود تو فانی ہے، لیکن باقی رہنے والی زندگی کے خواب دیکھتا ہے. اس کے خوابوں کو رب چونکا دیتا ہے. جیسے کسی سوئے ہوئے کو کوئی جگاتا ہے نا، ایسے ہی رب خوابوں سے چونکاتا ہے. کل من علیہا فان، ہر کوئی جو اس زمین پر ہے سب فنا ہونے والے. وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، اور تیرے رب کی ذات عزت والی، جلیل و کریم ذات باقی رہنے والی. انسان کی شدید خواہشات میں سے اس کی قوتوں میں کبھی کمی نہ آئے، لیکن اس کی قوتیں زوال پذیر ہیں. انسان چاہتا ہے اس کا شعور ایسے کمال تک پہنچے جس کو کبھی زوال نہ آئے.
लेकिन रब हकीकत का चेहरा दिखाता है, जो इंसान को किरची किरची करके रख देता है। वमन नुअम्मिरहु नुनक्किसहु फिल खल्क, जिसको हम लंबी उम्र देते हैं उसकी तो साख को ही उलट कर रख देते हैं। अफला याकिलून, क्या वो समझते नहीं है? उन्हें समझ नहीं आती? अपने सामने लोगों को बूढ़ा होते नहीं देखते? एक बच्चे और बूढ़े में अकली एतबार से कम फर्क रह जाता है। जितना जितना किसी की उम्र बढ़ती है उतना ज्यादा वो भूलना शुरू हो जाता है, बार बार दोहराना शुरू हो जाता है। और बच्चे और बूढ़े के चेहरे में कितना फर्क आ जाता है। बच्चे का चेहरा खिलती हुई कली की तरह और बूढ़े का चेहरा मुरझाए हुए फूल की तरह, दोनों में कितना डिफरेंस है। वमन नुअम्मिरहु नुनक्किसहु फिल खल्क, जिसको हम लंबी उम्र देते हैं उसकी तो हम साख ही उलट कर रख देते हैं। कौन सा इंसान है जो बूढ़ा होना चाहता हो, जो ये चाहता हो कि मेरा चेहरा झुर्रियां ज़्यादा हो जाए, इसके बावजूद उसकी कुव्वतें भी सवाल पसीर हो जाती हैं और उसकी साख भी उलट जाती है। इंसान की ख्वाहिशात में से शदीद ख्वाहिश है मिल्कियत की ख्वाहिश। हर चीज को अपनी मिल्कियत में लेना चाहता है। कितने लोग हैं जो कहते हैं हम बड़े पोजेसिव हैं, वो हर चीज को अपने इख्तियार में, अपने कंट्रोल में लेना चाहते हैं। अशिया को, रिश्तों को अपना बनाना चाहता है इंसान, अपना घर बनाना चाहता है, अपना बिजनेस बढ़ाना चाहता है, अपनी जरूरत की हर चीज को अपनी मिल्कियत बनाना चाहता है। ऐसी जगह रखना चाहता है जहां कुल्ली तौर पर उसका कंट्रोल हो, उसका इख्तियार हो। बात उसके लिबास की हो, वो चाहता है ऐसा लिबास पहनो। और कितने ही लोग हैं जो ये चाहते हैं कि ऐसा लिबास पहने जो देखे देखता ही रह जाए। लोग कहते हैं घर बनाए, ऐसा घर बनाए जो देखे देखता ही रह जाए, महवे हैरत हो जाए। लोग खाना खाना चाहते हैं, खाने में भी यही मकाम हासिल करना चाहते हैं, ऐसा खाना जिसका मजा खत्म ही ना हो, उससे ज्यादा मजे का खाना कभी किसी ने खाया ही ना हो। क्या आज लोग मजों की तलाश में नहीं है? मजों की तलाश में आप सोचिए, इस धरती के रहने वाले पहले इस धरती के खाने खाते थे, फिर चाइनीज खाने खाने शुरू हुए, अब कोरियन खानों की तरफ बड़ा ट्रेंड आया हुआ। लोग जो है वो मुख्तलिफ जगहों के खाने खाना चाहते हैं। अच्छा, फलां कंट्री का खाना, फलां डिश बहुत अच्छी है। ऐसे सच्ची बात है, सही लगता है कि जैसे ग्लोबल सिटीजन हो गया, लेकिन इंसान की ख्वाहिशात यहाँ तक ठहरने वाली नहीं है। रियली अगर उसे पता चले ना, मरीख में कोई मखलूक रहती है फलां खाना खाती, और उसे ये पता चल जाए उसका तरीका कार क्या है, तो वो यहाँ रह के मरीखी खाना खाना शुरू कर दे। कि इंसान की ख्वाहिशात की कोई लिमिट ही नहीं है। रियली इंसान इस दुनिया की लिमिट्स में रहने के लिए पैदा ही नहीं किया गया, क्योंकि उसको जो शऊर मिला है, उसके अंदर जो रूह है वो लिमिट्स में रह नहीं सकती। उसकी ख्वाहिशात जितना बढ़ा ले वो बढ़ती चली जाएंगी, क्योंकि उसके लाशऊर में जन्नत का तस्वुर मौजूद है, जहां की कोई चीज ऐसी नहीं है जिसको सवाल आ जाए, जहां जो चीज है वो कभी खत्म ना होने वाली। अब दुनिया में देखिए, लोग जिस चीज से मोहब्बत करते हैं, जिसको गाड़ियां अच्छी लगती हैं वो अच्छी से अच्छी गाड़ी, और फिर उसमें मजीद इनोवेशन के लिए इंसान हमेशा कोशिश करते हैं। अच्छा, बस नहीं चलता कि जिस नंबर प्लेट की गाड़ी मेरे पास है वैसी नंबर प्लेट किसी के पास ना हो। अभी आपने देखा होगा, फुला नंबर प्लेट की गाड़ियां, फुला शख्स के पास 100 गाड़ियां, उसकी हर गाड़ी एक ही नंबर की, हत्ता के लोग उन्हें उसी नंबर से याद करते हैं। अच्छा, इसी तरह से आप देखिए कि जो चीज भी इंसान के पास होती है, जितना ज्यादा वो अपनी ख्वाहिशात को बढ़ाता चला जाता है, उसे पता चलता है इसका कोई एंड ही नहीं।
कोई लिमिट ही नहीं है। लेकिन अजीब बात है, हर चीज पर अपना हक समझने वाला इंसान, कि हर चीज मेरी हो, हर चीज बेहतरीन हो, हर चीज पर मेरा इख्तियार हो, मैं जो चाहूं पालूं, जमीन तो ऐसी जगह नहीं है। जमीन पर यह मुमकिन नहीं है। ये उसके ख्वाब में रब उसे एहसास दिलाता है, वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर, दुनिया की जिंदगी धोखे के सामान के सिवा कुछ नहीं। दुनिया में लोगों को ये बताया जाता है, खा ले पी ले जी ले, eat drink and be merry tomorrow we may die, खा लो पी लो कि जिंदगी दोबारा नहीं मिलेगी। हम कहते हैं, हमें हमारे रब ने बताया है कि दुनिया में जो कुछ खाना पीना है, उस खाने पीने में ही ना रह जाओ। दोबारा जिंदगी मिलेगी, जहां जो चाहोगे पाओगे, वहां हर ख्वाहिश पूरी हो जाएगी। लेकिन इस जिंदगी में अपने आप को लिमिट्स में रखना है। जो लिमिट्स हमारी मुकर्रर करदा नहीं, मेरी माँ की मुकर्रर करदा नहीं, वो लिमिट्स मेरे खानदान की मुकर्रर करदा नहीं, मेरे रब की मुकर्रर करदा। अगर वो लिमिट्स मेरी फैमिली ने इख्तियार की हैं तो बहुत ही अच्छा है, मेरे वालिदैन ने इख्तियार की, मेरे शौहर ने इख्तियार की, मेरे खानदान ने इख्तियार की तो बहुत अच्छा है। लेकिन अगर मेरा खानदान उन लिमिट्स में नहीं है, तब भी मुझे उन्हीं लिमिट्स में रहना है, जो लिमिट्स मेरे रब ने बना दी है, जिसके अंदर रहने पर जन्नत की खुशखबरी। इंसान की शदीद ख्वाहिशात इस अमर का सबूत है, वाज़ेह सबूत है कि इंसान दुनिया की किसी चीज पर हमेशा के लिए मुतमईन नहीं रह सकता, पॉसिबल ही नहीं है। उसे बेहतरीन चीज मिल जाए, वो किसी और चीज के चक्कर में मसरूफ हो जाएगा। थोड़े दिन गुजर जाएंगे, वो चीज पुरानी हो जाएगी, वो फिर किसी नई चीज की तरफ भागता है। असलन इंसान जन्नत से कम किसी चीज पे कॉम्प्रोमाइज कर ही नहीं सकता। रियली अगर इंसान के अंदर की वुसअतों को देखें, जितनी अल्लाह ताला ने वुसअत दे रखी है, इंसान इससे कम किसी चीज पे कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता। इंसान चाहता है उसे हमेशा की जिंदगी मिले मगर उसकी उम्र ना बढ़े। आप में से किसका जी चाहता है कि वो यानी अचानक सवाल पसीर जिंदगी में या ऐसी कहूलत वाली जिंदगी में दाखिल हो जाए? जिसकी भी उम्र बढ़ती है उसका दिल चाहता है कि स्टेटस 16 वाला ही रहे, इससे ज्यादा आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है। यानी छोटी या वो एज जिसमें इंसान ज्यादा खुश रहता है, ज्यादा उसके अंदर ख्वाहिशात होती हैं। इंसान ये चाहता है कि उसे कभी बीमारी ना आए, कभी दुख ना आए, कभी उसके कमाल को सवाल ना मिले, कभी उसे बेसकूनी ना मिले। इंसान इस जिंदगी में दरअसल जन्नत को तलाश करता है, जबकि अल्लाह ताला ने इन तमाम चीजों को जन्नत में रख दिया है। इंसान ऐसी जिंदगी की तलाश में अपना माल, अपनी सलाहियतें, अपनी जवानी, अपना वक्त, अपना सब कुछ लगा देता है। लेकिन दुनिया में मिलने वाली जिंदगी को खत्म होना है, ये जिंदगी मौत से हमकिनार हो जाएगी। तो जिसको लाजवाल जिंदगी चाहिए, जो बुढ़ापे से बचना चाहता हो, जो बीमारियों से नजात चाहता हो, जो दुखों से फरार चाहता हो, जो गमों से नजात चाहता हो, उसे जान लेना चाहिए कि जन्नत वो मकाम है जहां हमेशा सेहतमंद रहेंगे, कभी बीमारी नहीं आएगी, जहां सदा जवान रहेंगे, कभी बुढ़ापा नहीं आएगा, जहां हमेशा खुश रहेंगे, कभी गम नहीं आएगा। इसको जीना है वो जन्नत में जिए, जन्नत के तसव्वुर में जिए, जन्नत हासिल करने के लिए जिए। जन्नत के हुसूल के लिए जो करेंसी चाहिए वो माल नहीं है, आमाल है। वो सौले आमाल करके जिए। इसके बगैर महज
जुबान से इकरार करने पर जन्नत नहीं मिलेगी। जिसको जीना है जन्नत के हुसूल के लिए कोशिश करके जिए। आरामदेह घर चाहिए जहां नाराजगियां ना हो, जहां खुशियों का बसेरा हो, जहां बेसुकूनी ना हो, इत्मीनान ही इत्मीनान हो, जहां जरूरत की हर चीज मुयस्सर हो, जहां हुस्न हो, दिल फरेबियां हो, जहां जो जी चाहे मिले, जहां प्राइवेसी हो, जहां कोई बुरी बात सुनने को ना मिले। इंसान तलाश में है, ऐसे घर की तलाश में वो मारा मारा फिरता है, अपना सब कुछ झोंक देता है ताकि ये जिंदगी जन्नत बन जाए। वो इस दुनिया को जन्नत बना लेना चाहता है। ख्वाब टूट जाते हैं, उसे हुस्न मिलता है तो सुकून नहीं मिलता, खुशियां मिलती हैं तो जरूरियात महदूद मिलती हैं। जरूरियात की महदूदियत उसके इत्मीनान को खत्म कर देती है। खुशियां चाहता है तो नाराजगियां हिस्से में आती हैं, सेहत चाहता है बीमारी हिस्से में आती है। इंसान चाहता है सुकून मिले, डिस्टर्बेंस मिल जाती है। वो बुरा सुनना नहीं चाहता, लेकिन कड़वी कसैली सुननी पड़ जाती है। वो चाहता है कि लव लायानी माहौल से बच जाए, लेकिन ये सब कुछ उसके हिस्से में आ जाता है। कहाँ चला जाए इंसान? क्यों ना जन्नत चला जाए? क्यों ना जन्नत जाने के लिए वो एफर्ट कर ले? इंसान को जान लेना चाहिए कि वो जिस जुस्तजू में है वो दरअसल जन्नत की जुस्तजू है। वो दुनिया की जुस्तजू में उसे ना बदले। वो जिसकी तलाश में है वो जन्नत है, और जन्नत इस दुनिया में नहीं बन सकती। कितने लोग हैं जो दुनिया के घर को जन्नत बना लेना चाहते हैं, लेकिन उस घर में बस नहीं पाते। कितने ही लोग हैं खूबसूरत घर बनाते हैं, लेकिन उन घरों के सुकून को वो एंजॉय नहीं कर पाते। कितने लोग हैं घर बनाने के बाद, महल बनाने के बाद पहला कदम रखते ही जहान से चले जाते। मैं एक खातून से मिली, कुछ अर्सा पहले की बात है। उन्होंने कहा कि मैंने अपने घर के लिए दुबई से, यूएसए से, मुख्तलिफ जगहों से शॉपिंग की है, और अब मेरा घर इंशाअल्लाह ताला बन के तैयार हो जाएगा, तो उसके बाद मेरी मसरूफियत कम हो जाएगी, मैं भी कुछ अल्लाह ताला की तरफ तवज्जो करने के काबिल हो जाऊंगी। फिर यूं हुआ कि घर पूरा हो गया और उम्र ने वफा नहीं की। घर जिस दिन शिफ्ट होना था एक दिन पहले डेथ हो गई, रहना नसीब ही नहीं हुआ। इंसान भूल जाता है कि मैं जिस दुनिया के लिए सब कुछ कर रहा हूं वो मेरे हाथ में नहीं रहेगी। जन्नत ऐसा मकाम है जिसके बारे में रब्बुल इज्जत कहते हैं, वल्लाहु यदउ इला दारिस्सलाम, अल्लाह ताला तुम्हें दारुस्सलाम, सलामती के घर की दावत देता है। तो इंसान सलामती तो चाहता है, सुकून की तलाश में है, तो रब्बुल इज्जत ने ये बताया है कि सुकून कहाँ है। उसने फरमाया व इन्नल आखिरता हिय दारुल करार, बेशक आखिरत ही तो करार की जगह है। हक ये है कि इंसान की बेकरारियों को जन्नत के सिवा कहीं करार नहीं मिल सकता। इंसान तो ऐसी जगह की तलाश में है जहां वो कोई लग़व बात ना सुने। क्या अल्लाह पाक ने नहीं फरमाया ला तस्मऊ फीहा लागिया, वहां वो कोई बेहुदा बात नहीं सुनेंगे, बुरी बात नहीं सुनेंगे। हक ये है कि समातों का सुकून जन्नत के सिवा कहीं मुमकिन नहीं है। जन्नत में रंग है, जन्नत में जायके हैं, जन्नत में खुशबुएं हैं, जन्नत में गुनगुनाहटें हैं, जन्नत में नगमगियत है, जन्नत में हुस्न है, जन्नत में दिल फरेबियां हैं, जन्नत में केयर है, जन्नत में इज्जत है, जन्नत में आराम है, जन्नत में प्राइवेसी है, जन्नत में गम नहीं है, जन्नत में बीमारी नहीं, जन्नत में तकलीफ नहीं, जन्नत में दुख नहीं, जन्नत में बेसुकूनी नहीं है, और जन्नत में धोखा नहीं है, जन्नत में मुशक्कत नहीं है, जन्नत में नाराजगी नहीं है, जन्नत में किसी के रूठ जाने का खौफ नहीं है, छिन जाने का गम नहीं, जन्नत में मौत नहीं है। जन्नत का घर खूबसूरत है, जन्नत के लिबास खूबसूरत है, इंतजार में है। जन्नत के जेवरात खूबसूरत हैं, जन्नत में इंसान का साथ खूबसूरत होगा,
जन्नत की जिंदगी को कभी सवाल नहीं आएगा, जन्नत में बेखबरी नहीं होगी, हर इंसान वेल इन्फॉर्म्ड होगा, जन्नत में हर चीज अपनी मिल्कियत में होगी, जन्नत में करार है, जन्नत में जो जी चाहेगा करेंगे, जन्नत में अपने मौला का पैदा करने वाले का दीदार होगा। इंसान को जन्नत की तलाश है। जान लीजिए जिंदगी जन्नत जाने के लिए मिली है। अपना सब कुछ लगाकर भी जन्नत में जाना है इंशाअल्लाह। जिसने पांचों नमाजों यानी 5 नमाजें हैं, कितनी नमाजें हैं? हाथ उठाइए। 5 नमाजें, ये 5 नमाजें हैं। 5 नमाजों में आपने क्या काम करना है? उसका वुजू पूरा करना है, करेंगे? उसका रुकू पूरा करना है, उसके सजदों की हिफाजत करनी है और उनके औकात की हिफाजत करनी है। नमाज के वक्त की हिफाजत करेंगे? पहले वक्त में पढ़ेंगे या वक्त को गुजारते चले जाएंगे? इन्न सलात कानत अलल मुमिनीना किताबम मौकूता, बेशक नमाज मोमिनों पर वक्त की पाबंदी के साथ फर्ज की गई। वक्त की पाबंदी करेंगे ना इंशाअल्लाह। तो देखिए पहला काम हो गया, आपने इरादा कर लिया अल्हम्दुलिल्लाह। और दूसरा काम इंशाअल्लाह 3 महीने के अंदर अंदर उसका आगाज होने वाला है। और वो काम क्या? रमजान के रोजे रखे, रमजान के रोजों की तैयारी करनी है इंशाअल्लाह। और रमजान का रोजा जो है वो इंसान को क्या कुछ नहीं देता, लाल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम मुत्तकी जाओ। रमजान तो ट्रेनिंग मंथ है ना। रमजान के रोजे रखे और रास्ते की इस्तिताअत की सूरत में बैतुल्लाह का हज किया। आज इरादा करें, कितने लोग हज करने का इरादा करते हैं? तौफीक तो अल्लाह ताला ने देनी है, असबाब भी उसी ने पैदा करने हैं इंशाअल्लाह। और खुश दिली से ज़कात अदा की। देखें आप आज कह सकते हैं कि मेरी मिल्कियत में इतनी चीजें नहीं है कि ज़कात अदा करूं, लेकिन देखिए आप ज़कात अदा करने की नियत कर लें, अल्लाह ताला ज़कात देने वाला बना देगा इंशाअल्लाह। और अमानत को अदा किया। रसूलुल्लाह से कहा गया अमानत अदा करने से क्या मुराद है? फरमाया गुस्ले जनाबत करना। कि अल्लाह ताला ने इसके सिवा इब्ने आदम के पास दीन की किसी और चीज को बतौर अमानत नहीं रखा। गुस्ले जनाबत तहारत के लिए है और इस तहारत की वजह से इंसान सिर्फ खुद पाक नहीं होता, अमानत अदा करता है। अल्लाह ताला ने इसे अमानत के तौर पर रखा है। अल्लाह ताला हमें अमानत का हक अदा करने की तौफीक अता फरमाए। यहाँ पे कुछ चीजों के बारे में मैं मजीद डिटेल आपके सामने रखना चाहती हूँ। नमाज की हिफाजत करनी है तो नमाज के वुजू की हिफाजत करनी। वुजू की हिफाजत कैसे होगी? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बार इरशाद फरमाया, बहुत बार, वैलुल लिल आकाबि मिनन नार, उन एड़ियों के लिए आग से हलाकत है। वो कौन सी एड़ियां हैं? जो खुश्क रह जाती हैं। कभी कभी ऐसा होता है ना, जब ठंड ज्यादा हो जाए और कभी ऐसा होता है कि इंसान तेजी में हो, कोहनियां खुश्क रह जाए, या कभी उंगलियों के दरमियान या कभी पांव की उंगलियों के दरमियान पानी ना पहुंचे। वुजू की हिफाजत करनी है तो वुजू करते हुए इधर उधर की बातचीत को भी अवॉइड कर लें। देखिए हर अमल का एक जाहिरी पहलू होता है, एक वो पहलू है जो उसको ज्यादा अच्छा आसान बनाता है। आप वुजू करते हुए अगर अपना ध्यान अपने रब की तरफ रखेंगे तो अच्छी नमाज अदा करेंगे। वुजू की हिफाजत कर लेने वाला नमाज की हिफाजत के काबिल भी हो जाता है। अब दूसरी चीज देखेंगे, नमाज के रुकू और सुजूद की हिफाजत है। इससे मुराद है मसनून तरीके के साथ रुकू और सजदे किए जाए। देखिए दीन कोई यानी उसका फैसला मैं थोड़ी करूंगी। क्या दीन का फैसला मेरी माँ करेगी, मेरे वालिद करेंगे, क्या मेरा खानदान करेगा, मेरे इलाके के लोग करेंगे?
کیا سارے انسانوں میں سے جو بڑا انسان ہے وہ کرے گا؟ نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ترکت فیکم امرین، میں تم میں دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، اگر ان کو مضبوطی سے تھامے رکھو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے. کتاب اللہ و سنتی، اللہ کی کتاب اور میری سنت. آج آپ یہ طے کر لیں، دیکھیں یہ بات سمجھ جائیں گے نا، اختلاف تو ہے ہی نہیں، کسی کا کوئی اختلاف نہیں اس پہ. اللہ کی کتاب اور نبی کی سنت. کیا آپ کے دل اس پہ مطمئن ہے؟ اگر مسلمان ہے تو آپ کا دل ضرور مطمئن ہوگا کہ اس میں کسی کے بڑا بنانے والی اور کسی کو چھوٹا بنانے والی بات نہیں، کوئی اختلاف نہیں، کسی کی بات بڑی نہیں، کسی کی ذات بڑی نہیں، اللہ کی ذات بڑی ہے اور اللہ تعالیٰ نے جس رسول کو بھیجا اس کی بات بڑی ہے. تو رکوع اور سجدوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو پیش نظر رکھیں، تب حفاظت ہوگی. اچھا، اس بارے میں ضرور کہنا چاہوں گی، ہمارے یہاں یہ بہت زیادہ لوگوں کے اندر پریشانی پائی جاتی ہے کہ خواتین کی نماز اور مردوں کی نماز مختلف ہے. اگر آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے دیکھنا چاہیں تو آپ کو فرق ہی نہیں ملے گا. یعنی اس کا فیصلہ میں کیسے کر سکتی ہوں کہ سجدہ کیسے کرنا چاہیے؟ میری کیا اوقات ہے؟ میرے جیسے کسی بھی انسان کی کیا اوقات ہے؟ مرد ہو یا عورت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر ایک کے لیے ارشاد فرمایا سلو کما رأیتمونی اصلی، نماز اس طرح پڑھو جیسے مجھے پڑھتے دیکھتے. شکر اللہ تعالیٰ کا جس نے ہمیں ایمان کی دولت نصیب کی، ہمیں اپنے نبی پر ایمان لانے کی توفیق دی، ہمیں ان کی بات کی تصدیق کی توفیق عطا فرمائی. تو آپ کسی انسان کی بات نہیں، اپنے رب کی طرف دیکھیں، اپنے رسول کی طرف دیکھیں. That's it. نہ میں یہ حق رکھتی ہوں نہ کوئی اور حق رکھتا ہے کہ اس کے بارے میں اپنے طریقے مقرر کرے. تو خواتین ہو یا مرد، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرنے کے لیے تیار ہے؟ کیا آپ یقین رکھتے ہیں کہ وہ اللہ کے نبی ہیں؟ کتنے لوگ ہیں جو رکوع اور سجدوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو فالو کریں گے؟ اب آپ نے خود دیکھنا ہے کہ رسول اللہ کیسے سجدہ کرتے تھے. خود پڑھیں اور آئندہ اپنے سجدوں کے بارے میں اپنے اساتذہ سے بھی پوچھیں، کیا میرا سجدہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسا ہے؟ ہمیں اس کے بارے میں اوتھینٹک نالج ملتا ہے جس کی تصدیق موجود ہے. ہمیں سے کوئی یہ حق نہیں رکھتا کہ کسی کو غلط یا کسی کو صحیح قرار دے اپنے سٹینڈرڈ کے مطابق. ہمارا یہ حق نہیں ہے. ہمارے درمیان اللہ کی کتاب سٹینڈرڈ ہے، رسول اللہ کی سنت سٹینڈرڈ ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے برا چور نماز کا چور ہے. اللہ اکبر! کیا نماز کی بھی چوری ہوتی ہے؟ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ وہ کس طرح نماز کی چوری کرتا ہے؟ تو امام الانبیاء نے فرمایا جو نماز کے رکوع اور سجدے پورے اطمینان سے نہیں کرتا. اطمینان سے کریں گے نا، ایسا نہیں کہ ابھی سجدے میں گئے پھر سر اٹھا لیا، سجدے میں جانے سے پہلے ہی سر اٹھا لیا. اور پھر اگلی بات ہے نماز کے اوقات کی حفاظت. اللہ تعالیٰ نے 5 نمازیں وقت کی پابندی کے ساتھ فرض کی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے 5 نمازیں فرض کی ہیں، جو شخص ان کے لیے اچھا وضو کرے گا، انہیں ان کے وقت پر ادا کرے گا، ان کے رکوع اور سجدوں کو پورا کرے گا، تو اللہ تعالیٰ کا اس سے وعدہ ہے اسے بخش دے گا. یا اللہ ہم سب کو بھی بخش دینا. اور جو ایسا نہیں کرے گا تو اللہ تعالیٰ کا اس سے کوئی وعدہ نہیں ہے، چاہے تو اسے بخش دے چاہے تو عذاب دے. ابو داؤد کی 425 نمبر روایت. پھر رمضان کے روزے رکھنا یہ بہت بڑا عمل ہے. اور راستے کی استطاعت کی صورت میں بیت اللہ کا حج کرنا. استطاعت میں
کچھ چیزیں شامل ہیں، جیسے صحت مند ہونا، جیسے راستے کا پرامن ہونا، جیسے زیادہ راہ اور سواری کا انتظام ہونا، اور راستے کی رکاوٹ نہ ہونا، مثلا کوئی قید ہو جائے یا ظالم حکمران ہو، اس کا خوف ہو، تو یہ ایسی رکاوٹیں جس کی وجہ سے کوئی حج نہیں کر سکتا۔ پھر خوش دلی سے زکوٰۃ ادا کرنا جو ہے جنت میں لے جانے والے اعمال میں سے، اور امانت کو ادا کرنا یعنی غسل جنابت کرنا۔ سیدنا ابو ہریرہ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں 3 چیزیں اعلی ایمان والے ہونے کی نشانی۔ ایک یہ کہ سردی کی رات میں کسی کو احتلام ہو، وہ غسل کے لیے کھڑا ہو جائے اور اس کو اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی نہ دیکھے۔ دوسرا، گرمی کے دن میں روزہ رکھنا۔ تیسرا، کسی شخص کا بیابان میں کسی جگہ نماز پڑھنا جہاں اللہ تعالیٰ کے علاوہ اسے کوئی نہ دیکھے۔ سبحان اللہ۔ اور جنت میں داخلہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یاد رکھو کوئی اپنے اعمال کی وجہ سے جنت میں نہیں جائے گا۔ صحابہ نے عرض کیا، اللہ کے رسول کیا آپ بھی نہیں؟ آپ نے فرمایا، میں بھی نہیں، سوائے اس کے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو اپنی مغفرت اور رحمت کے سائے میں ڈھانک لے۔ رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، یا ارحم الراحمین ہم سب کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائیے، آمین ثم آمین۔